गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आपको अब तक जितना करवाया है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जितना भी रिवाइज किया है आपने रिवाइज कर लिया होगा। इन आवर लास्ट सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर कार्बोहाइड्रेट्स। कंप्लीट किया था हमने कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स हमने किए एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रोटीन्स। ओके, तो प्रोटीन्स के अंदर बेटा हमने स्टार्ट किया था अमीनो एसिड पढ़ना एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट इन अमीनो एसिड्स आर substituted methane. Okay, they are substituted methane where three different groups substitute the hydrogen, two different groups substitute the hydrogen and one is alkyl group. Okay, the first hydrogen is substituted by amino group, the second one is substituted by your carboxyl group. Okay, and the third one is your hydrogen and the fourth one is a variable R group. Okay, which will decide the specific property of that particular amino acid. Understand? Now see what happened. In order to study protein we have to know about your different types of amino acids. So there are basically 20 type of amino acids, okay, on the basis of variable group. Understand? Variable group present in the present in your general formula of amino acid. See here we have discussed about this structure. So this one is your variable group. All these are similar in every amino acid, but this one is variable, and on the basis of this particular group we have classified our amino acids and we have a total of 20 amino acids. Okay, so what happens, see here we have two different types of amino acid. Non-polar means hydrophobic amino acids on the basis of R group. Okay, and we also have polar amino acid. See, in case of non-polar amino acid we further categorize them in the form of aromatic means cyclic non-polar amino acids. Okay, and alkyl amino acids where a linear chain is present. Okay, linear or branched chain is present in for R group. Okay, so the first one aromatic. बेटा बहुत अच्छे से लर्न करो, आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से हैं, ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन से हैं, पोलर कौन से हैं, ये सब पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से याद करो। तो फिनाइल एलानिन दैट इज योर PHE, ठीक है, ट्रिप्टोफन ये एरोमेटिक है। इसके अलावा टायरोसिन भी एरोमेटिक में आता है लेकिन वो पोलर है। ठीक है, एरोमेटिक में आपको 3 याद करने हैं। मैंने वाइफ वर्ड बताया था WYF। ठीक है, F से आपका फिनाइल एलानिन हो गया, W से आपका ट्रिप्टोफन हो गया और Y से आपका टायरोसिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको लर्न करने की जो ट्रिक है बेटा, कंप्लीट नॉन पोलर अमीनो एसिड को लर्न करने की, पहले हम एल्काइल देख लेते हैं फिर ट्रिक देखेंगे। एल्काइल इज योर ल्यूसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, एलानिन एंड मिथ्योनिन। ओके, so how you will learn these amino acids? You have to learn a statement that is phenyl triparty lost VIP gain. Okay, so the words that I have darkened, okay, you have to remember these particular words in order to learn all these amino acids. Clear? Now in case of polar amino acid we have categorized polar amino acids on the basis of on the basis of their alkyl group. It may be acidic and the whole amino acid will be acidic. Okay, it may be basic, it may be neutral. Understand? So acidic में you have two basic type of two amino acid, that is aspartic acid and glutamic acid. ओके, एस्पार्टेट भी बोल देते हैं, कई बार ग्लूटामेट भी बोल देते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दोज वर्ड्स, ऑल आर सेम। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक में यू हैव 3 अमीनो एसिड, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, लाइसिन। ओके, एंड न्यूट्रल जो है वी हैव कैटेगराइज्ड न्यूट्रल। न्यूट्रल देखो बेटा, न्यूट्रल में आपने याद करना है थ्रियोनिन, एस्पेरेजिन, ग्लूटामीन, वो ग्लूटामिक एसिड था, दिस इज ग्लूटामीन,
tyrosine, okay, cysteine, and ultimately serine. Okay, so threonine, asparagine, glutamine, tyrosine, cysteine, and serine. Okay, learning trick, you have to learn a particular word or line, you can say tag TCS corporation. Okay, tag TCS corporation. So T for tyrosine, A for asparagine, G for glutamine. Understand? Now in case of acidic amino acid, the acidic property is basically due to COOH group, and in case of basic amino acid, the basicity is basically due to NH2 group. ओके, नाउ देखो बेटा, अब हम सभी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आपके नीट में जो पूछा जाता है, ठीक है, एंड वी हैव टू कंप्लीट इट. देखो, नॉन पोलर के लिए एलिफेटिक की अगर हम बात करें, एलिफेटिक यानी कि आपके लीनियर और सिंपल और ब्रांच्ड लीनियर अमीनो एसिड, ठीक है, चेन के फॉर्म में जो अमीनो एसिड थे, सिंपल भी हो सकती है, वो ब्रांच्ड भी हो सकती है. तो वहाँ पे बेटा या तो आप फिनाइल त्रिपाठी वाला पूरा ये लर्न कर सकते हो, लेकिन फिनाइल त्रिपाठी वाला लर्न करोगे तो वहाँ पे आपको एरोमेटिक भी याद होंगे. यहाँ आपने एरोमेटिक नहीं लिखना है, एरोमेटिक की हम अलग से क्लासिफिकेशन करेंगे. तो यहाँ सिर्फ नॉन पोलर एंड एलिफेटिक है. एलिफेटिक यानी कि चेन जो आपकी है दैट इज इधर सिंपल लीनियर और ब्रांच लीनियर. अंडरस्टैंड? एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है. तो आपने बस एक वर्ड याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आसानी से याद हो जाता है. गैव लिम्प. G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलानिन, V फॉर वैलिन, L फॉर ल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मिथियोनिन एंड P फॉर प्रोलिन. ओके, सो G फॉर ग्लाइसिन. ग्लाइसिन देखो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा यहाँ पे, इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स. पहली बात, सिमेट्रिकल अमीनो एसिड. सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप आपका सिंपल मोस्ट है, दैट इज H. ठीक है, सिंपल अमीनो एसिड हो गया है आपका, सिमेट्रिकल शो कर रहा है ये. एलानिन में आपका जो पर्टिकुलर R ग्रुप है दैट इज मिथाइल ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट इज योर वैलिन. वैलिन में बेटा R ग्रुप आपका रहेगा, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, किस तरीके से R ग्रुप यहाँ पे है. दो मिथाइल ग्रुप हैं, एक कार्बन के ऊपर, ठीक है, बीटा कार्बन के ऊपर, और बीटा कार्बन इज अटैच्ड विद योर नॉर्मल कार्बन, अल्फा कार्बन. ल्यूसिन हेयर, ठीक है, दिस वन इज आइसोल्यूसिन. आपको स्ट्रक्चर याद करने हैं बेटा, ठीक है, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आसान है याद करना. एक ट्रिक बना लो, 2-4 बार लिख कर देखोगे चीज़ें याद हो जाएंगी, और एटलीस्ट 7 डेज में 15 डेज में इसको रिवाइज करते रहो तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वन टाइम में आपने लर्न किया और आपको अच्छे से याद हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा. एक बार याद हो जाता है फिर सब भूल जाते हैं. हम सब मशीन नहीं है कि हमने एक बार देखा और याद हो गया. ठीक है, जैसे आप भूलते हो आपकी मैडम भी भूलती है, और कोई भी पर्सन हो, ठीक है ना, आप बार बार रिवाइज करते रहोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज यू विल फॉरगेट. ओके, सो याद रखने के लिए रिविजन इज मस्ट. ओके, सो मिथियोनिन. मिथियोनिन में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, मिथियोनिन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. केवल 2 ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें सल्फर होता है, मिथियोनिन और सिस्टीन. मिथियोनिन आपका नॉन पोलर में आता है, सिस्टीन आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड में आता है. पोलर है लेकिन न्यूट्रल है. ओके, प्रोलीन में बेटा साइक्लिक कंपाउंड आपको दिखेगा. प्रोलीन के अंदर जो आपको साइड चेन दिख रही है दैट इज योर पी की फॉर्म में, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे अमीनो ग्रुप की बजाय इमीनो ग्रुप है. अब इमीनो ग्रुप में क्या होता है बेटा, देखो अमीनो ग्रुप में ये NH2 होता, ओके, लेकिन इमीनो ग्रुप में क्या होता है, एक हाइड्रोजन इसका हट गया है और इसने ये बॉन्ड बना लिया इससे. ठीक है, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया. अब ये जो NH ग्रुप बच गया, ये NH ग्रुप अमीनो नहीं कहलाएगा, इसको बोलेंगे इमीनो ग्रुप. ठीक है, तो ये साइक्लिक चेन बना लेता है. आपको याद रखना है, देखो P से प्रोलीन और P जैसा स्ट्रक्चर भी बन रहा है ना, तो आपने P ऐसे लिख सकते हो. आप याद करना बहुत आसान है, याद रखना इसको. प्रोलीन में आपका क्या रहता है, प्रोलीन के अंदर आपको इमीनो ग्रुप मिलेगा. नेक्स्ट इज योर बेटा पोलर अमीनो एसिड. पोलर है लेकिन अनचार्ज्ड है. ठीक है,
कौन से? पोलर और न्यूट्रल जो हमने देखे थे। पोलर तो हैं आपके लेकिन न्यूट्रल है। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है बेटा, स्टेशन क्यूसी। स्टेशन क्यूसी, STN स्टेशन की शॉर्ट फॉर्म हो गई, और QC ये वर्ड याद रखो बेटा, याद हो जाएंगे। और इसके लिए ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये स्टेशन क्यूसी, गैप लिंक, इनके लिए बेटा एक आपको मैंने सिस्टम बताया था लर्न करने के लिए। अभी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा किसी भी बुक में, लेकिन बेटा आगे चल के आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो बेटर है आप अभी से याद कर लो, ठीक है। ये हमने अल्फ़ाबेट्स लिए हैं, और ये अल्फ़ाबेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है, देखो नॉर्मली तो क्या है, जो फर्स्ट लेटर होता है वही आपका अमीनो एसिड का अल्फ़ाबेट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। बट कई बार क्या होता है कि आपके अमीनो एसिड, जैसे आपका यहाँ पे हम ले लें एलानिन ले लें, एस्पैरेजिन ले लें, है ना, और आर्जिनिन ले लें, तीनों ही ए से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसका या तो सेकंड वर्ड लेते हैं, सेकंड नहीं लेते तो कुछ और लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले में ए से एलानिन है, एस्पार्टिक एसिड देखो डी से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे एस्पैरेजिन आपका एन से रिप्रेजेंट हो रहा है, जी से फिर देखो कई हैं, टी से कई हैं। तो हमने बस वो याद रखनी है बेसिकली, जो देखो जो सिंपल है वो तो याद रहेगा ही, जैसे आपका ए से एलानिन है, सी से सिस्टीन है। अब जी से क्या है आपका ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, जी से ही आपका ग्लाइसिन है, ठीक है, और जी से ही आपका ग्लूटामीन है। तो तीन है जी से, तो जी से एक तो नॉर्मल है ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड के लिए यू हैव टू लर्न ई, ओके, और ग्लूटामीन के लिए यू हैव टू लर्न क्यू, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अब तो जो वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं बेसिकली आपको वही ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। जैसे टी वाला जनरली तो देखो ए रिपीट होता है, ठीक है, पी रिपीट होता है, जी रिपीट होता है, और टी एल भी रिपीट होता है, ठीक है। तो बाकी नॉर्मल हैं आपके, सब याद हो जाएंगे बाकी तो, ठीक है ना। वी से भी एक ही है, एस से भी आपका एक ही है, सीरीन ही है, ठीक है ना। तो जनरली बाकी याद हो जाएंगे, लेकिन जो रिपीट होने वाले हैं वो बेटा याद कर लो, ठीक है। टी से थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन और टायरोसिन। ट्रिप्टोफन W आपका आएगा, ट्रिप्टोफन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टायरोसिन Y देखो टी वाई तो वाई सेकेंड वर्ड आपने टायरोसिन का ले लिया, क्लियर। तो ये याद हो जाएंगे, तो फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टेबल जो आपको बताई है, ये टेबल याद कर लो बेटा, बहुत आसान है। देखो यहाँ से 101% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब स्टेशन QC, S से सीरीन, T से थ्रियोनिन, ठीक है, और आपका N से बेटा एस्पैरेजिन है, ठीक है। जी से ग्लूटामिन होना चाहिए था लेकिन ग्लाइसिन होता है, तो यहाँ पे ये क्यू से रिप्रेजेंट होता है। तो ग्लूटामिन इज योर अनचार्ज्ड पोलर अमीनो एसिड, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये आपके कितने हो गए, 1 2 3 4। हमने उस टेबल में जो पहले देखी थी उसमें ज़्यादा थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बेटा जो अमीनो एसिड थे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से थे। अब यहाँ पे कुछ जो मिसिंग है, जैसे सिस्टीन हो गया, ठीक है ना, और एक आपका टायरोसिन को हमने इस कैटेगरी में इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमें इसको एरोमेटिक के अंदर डालना है, ठीक है। और सिस्टीन को इसलिए नहीं डाला क्योंकि सिस्टीन में हम सल्फर कंटेनिंग बताएंगे। तो अभी सिस्टीन यहाँ पे लिखा हुआ तो है ही, सिस्टीन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो टोटल 5 आपको याद करने हैं बेटा। सीरीन के अंदर देखो हाइड, यहाँ पे जो आपका बेसिकली जो R ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे आपको हाइड्रोक्सी मिथाइल मिलेगा। थ्रियोनिन में ये क्या है आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थ्रियोनिन के अंदर देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ 2 कायरल कार्बन है। अल्फा कार्बन भी देखो आपको कायरल दिख रहा है। कायरल का मतलब मैंने कल बताया था, इट हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू पर्टिकुलर कार्बन। सिमिलरली बीटा कार्बन में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन होते हैं थ्रियोनिन के अंदर। एस्पैरेजिन जो है बेटा, यहाँ पे देखो आपको जो है R ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ R ग्रुप के अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, ठीक है। ग्लूटामीन के अंदर बेटा यहाँ पे लीनियर चेन हो जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटली आपका सिस्टीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने बताया था कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, क्लियर। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड 2 ही आपको याद रखने हैं, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन।
बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, लेकिन वहाँ पे भी डिफरेंस है बेटा, यहाँ आपका टर्मिनल एसएच ग्रुप है और वहाँ पे आपका सब टर्मिनल था, इसके नीचे एक और ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। देखो वहाँ पे सब टर्मिनल है आपका, ये देखो नीचे मिथाइल ग्रुप है, बीच में है, ठीक है ना। और वहाँ पे कैसा था बेटा, वहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टीन टर्मिनल है, सल्फर टर्मिनल है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जहाँ पे सल्फर बॉन्ड सल्फर प्रेजेंट होगा वहाँ सल्फाइड बॉन्ड बनेगा। तो हो सकता है आपसे ये ना कहा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सल्फर, डायरेक्टली ये पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सल्फाइड बॉन्ड इन प्रोटीन, ठीक है। तो सल्फाइड बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा, सल्फाइड बॉन्ड वो बनाएगा जहाँ पे सल्फर अवेलेबल होगा, ठीक है ना। एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड में बेटा ट्रिप्टोफन, टायरोसिन और फिनाइलैलानाइन। वर्ड जो आपको याद रखना है दैट इज वाइफ, ठीक है। वाइफ घुमा देती है सभी को, घुमाने का मतलब समझ गए होगे, इतने समझदार भी हो, ठीक है ना। तो देखो ट्रिप्टोफन W से रिप्रेजेंट किया जाता है, Y से टायरोसिन और फिनाइल के लिए देखो P से प्रोलीन होता है, तो ऑब्वियसली फिनाइल के लिए आपने F यूज करना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की वजह से, प्रोनाउंसिएशन जो होता है आपका दैट इज F। अच्छा, ट्रिप्टोफन में देखो एरोमेटिक के साथ साथ इंडोल रिंग है। इंडोल रिंग में क्या होता है बेटा, आपका 9 मेंबर्ड रिंग रहेगी, लेकिन एक जगह पे आपके पास नाइट्रोजन रहेगा, इमीनो ग्रुप रहेगा, ठीक है ना, एक जगह पे। तो ये कंप्लीट आपकी इंडोल रिंग हो गई, ठीक है। तो पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टायरोसिन। टायरोसिन में क्या होता है बेटा आपका, एक तो हेक्सागोनल रिंग रहेगी, ठीक है, उस पे आपका क्या लगेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। फिनाइलएलानाइन में क्या होता है बेटा, सिर्फ OH ग्रुप आपका एब्सेंट है टायरोसिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन में सिर्फ OH का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सिमिलर है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अमीनो एसिड। अब देखो चार्ज्ड अमीनो एसिड बहुत आसान है याद करना, पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज। तो देखो आप पॉजिटिवली में, पॉजिटिव चार्ज में क्या याद करो, ऋतिक, ठीक है, ऋतिक। अब ऋतिक को हम जब स्पेलिंग लिखते हैं ना बेटा तो HR से लिखते हैं, HRK, ठीक है, ऋतिक, आप ऐसे याद करो। और नेगेटिवली चार्ज के अंदर दीदी को जैसे कई बार बोलते हैं ना आजकल, मॉडर्न प्रोफेशन, मॉडर्न लैंग्वेज में हम बोलते हैं दी बोलते हैं, तो सिमिलरली ऋतिक दी याद रखो, ऋतिक रहेगा पॉजिटिवली चार्ज और दी रहेगा आपका नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिवली H से हो गया हिस्टिडीन, यहाँ पे इमिडाजोल रिंग है, इमिडो पेंटागोनल रिंग होती है जिसमें 2 जगह पे आपका नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आर्जिनिन में बेटा ग्वानिडीनो ग्रुप होता है। ग्वानिडीनो ग्रुप का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको एक ही कार्बन पे 3 नाइट्रोजन अटैच्ड दिखाई देंगे, ठीक है, दैट इज योर ग्वानिडीनो ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट वन इज योर लाइसिन। लाइसिन में आपका ईटा अमीनो ग्रुप होगा। अब ईटा का मतलब क्या है, देखो फर्स्ट कार्बन जो आपका मेन स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर है आपका अमीनो ग्रुप का, अमीनो एसिड का, ठीक है ना, वो आपका अल्फा कार्बन है, दिस वन इज योर अल्फा कार्बन, दिस वन, ओके। सो अल्फा कार्बन, ठीक है, बीटा कार्बन, उसके बाद गामा, डेल्टा एंड दिस वन इज ईटा। तो ईटा कार्बन पे आपने अमीनो ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका लाइसिन, ओके। सो ये क्या है आपके पोल, देखो यहाँ नाइट्रोजन की वजह से इधर भी नाइट्रोजन मिलेगा, इधर भी नाइट्रोजन एंड इधर भी नाइट्रोजन, ओके। इस नाइट्रोजन की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लियर। तो इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब नेगेटिवली चार्ज में देखो एस्पार्टिक एसिड को D से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे आपको एक COH ग्रुप एक्स्ट्रा दिख रहा है। भाई ये तो सभी में था, ये वाला, ये तो नॉर्मल है, सभी में रहेगा, लेकिन ये वाला आपको COH एक्स्ट्रा दिखेगा। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में डिफरेंस क्या है, एक मिथाइल ग्रुप का, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है, बाकी तो सब सेम है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके टोटल अमीनो एसिड्स, क्लियर, ठीक है। अब बेटा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, अब मैं उन सब चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें अगर मैं ये सब करवाऊँगी, मतलब जितना भी कंपटीशन लेवल का जो आपको करवाया है, ठीक है, आप एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है ना। अगर हम उतना डीपली जाएंगे तो फिर हमारा सिलेबस जो है रिविज़न नहीं हो पाएगा,
ठीक है, तो ये आप कर लो बेटा, ऐसा नहीं है यहाँ से आएगा नहीं, यहाँ से आने के चांसेस है, बट कुछ एफर्ट्स आप खुद के भी डालो। तो ये सारे मैंने आपको कंपटीशन विंडो की फॉर्म में करवाए थे, ठीक है ना, लेकिन रिवाइज नहीं करवा रही हूँ। आप एक बार पढ़कर देख लेना, और आपको लगे कि कुछ चीज़ आपको नहीं आ रही है तो प्लीज़ आस्क मी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस्ड विद प्रोटीन। ओके, प्रोटीन में देखो बेटा, प्रोटीन क्या है आपके, पॉलीपेप्टाइड्स हैं। नाउ व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स? पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड देखो क्या है, जब आपके अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक करते हैं, जुड़ते हैं एक के बाद दूसरा, ठीक है ना, तो क्या होगा, आप उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप पढ़ रहे थे, सिमिलरली अमीनो एसिड्स को लिंक करने के लिए कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, CONS, दिस वन इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब ध्यान रखना जो आपके प्रोटीन होते हैं दे आर हेट्रोपॉलीमर, ठीक है, क्या है, हेट्रोपॉलीमर हैं, ठीक है, लेकिन हेट्रोपॉलीमर में कब तक है, जब तक वो नेचुरली सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। इफ वी हैव कंडीशन, इफ वी आर गिवन विद कंडीशन इन योर क्वेश्चन में आपको दे दिया कि आपके पास केवल एक ही टाइप का क्या है, अमीनो एसिड है आपके एनवायरनमेंट में, बहुत सारे, मान लो आप जो है इन विट्रो सिंथेसिस कर रहे हो, मतलब बॉडी से बाहर लैब में सिंथेसिस कर रहे हो, और यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड, से ग्लाइसिन और योर सीरीन और लाइसिन, कुछ भी ले लो, ठीक है, और कहा कि अब इससे हमने एक प्रोटीन बनाया, ठीक है, इन विट्रो बनाया, बॉडी से बाहर बनाया, उस केस में जो प्रोटीन बनेगा दैट वुड बी होमोपॉलीमर, वो होमोपॉलीमर हो सकता है। लेकिन अगर हम नेचुरली देख रहे हैं तो हमेशा हेट्रोपॉलीमर होगा, बिकॉज वी हैव 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड विच आर लिंक्ड रेंडमली टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, कैसे बनता है, देखो, दिस वन इज योर फर्स्ट अमीनो एसिड, दिस वन इज योर सेकेंड अमीनो एसिड। ओके, इधर से OH ग्रुप, इधर से H ग्रुप, दोनों यहाँ से हटेंगे और अल्टीमेटली वाटर का लॉस होगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, और अल्टीमेटली ये आपका बन गया है पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सी देयर आर सम फंक्शंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। कोलेजन है हमारी बॉडी के अंदर सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। एनिमल में अगर आपसे पूछे ना कोई कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, तो यू विल आंसर कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी। ओके, और कनेक्टिव टिश्यू है कोलेजन। ओके, नेक्स्ट इज योर ट्रिप्सिन, एंजाइम है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। नेक्स्ट वन इज इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, पढ़ा होगा ये भी आपने बेटा, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करती हैं ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। रिसेप्टर्स हैं आपके अलग अलग, ठीक है, स्मेल टेस्ट हार्मोन के रिसेप्टर्स है, वो भी प्रोटीन होते हैं। GLUT4, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कर लेना, नेक्स्ट लास्ट ईयर आया था, बच्चे सोच बैठे कि ये कहाँ से आया है। बेटा ये NCERT के अंदर टेबल दी हुई है, मैंने आपको रिटन फॉर्म में दे दिया, ठीक है, ये NCERT की टेबल है, तो आपको ये याद करनी है। GLUT4 क्या है, आपका ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रोटीन लगा लो जो मेम्ब्रेन के बीचों बीच होते हैं और आपके पर्टिकुलर कंपाउंड की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, टनल प्रोटीन जो आपको बताए थे उसी टाइप से। तो GLUT4 क्या है आपका, इट एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ओके, अलग अलग टाइप के होता है, GLUT1 होता है, GLUT2 आपका लिवर के अंदर होता है, GLUT3 आपका ब्रेन के अंदर होता है, GLUT5 आपका इंटेस्टाइन में होता है, तो बहुत सारे टाइप के हैं, ठीक है। जनरली जो ग्लूट मिलता है दैट इज 4, लीवर में जो मिलेगा, GLUT2 भी मिलता है, GLUT4 भी मिलता है, जनरली GLUT4 मिलता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, हर सेल में GLUT4 मिलेगा, बाकी कुछ स्पेसिफिक भी होता है। रुबिस्को इज योर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी होल बायोस्फीयर, ये याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या गया है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल पूछ लिया जाए तो यू हैव टू आंसर सेलुलोज, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछे तो यू हैव टू आंसर रुबिस्को, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट पूछे तब भी सेलुलोज ही बताओगे, ठीक है।
कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, आप पढ़कर आए हो, ठीक है, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है बेसिकली इसी की वजह से। फुल फॉर्म राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, पूरी प्रोटीन है, एक एंजाइम का काम कर रही है। क्लियर? ठीक है। अब देखो रामाचंद्रन ने हमें बताया था, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत देख लेना इसके बारे में। वैसे हालांकि हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इन्होंने जो है 3D स्ट्रक्चर दिया था, कोलेजन प्रोटीन के बारे में बताया था बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं प्रोटीन्स के 4 डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, यानी प्रोटीन जो है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो अगर आपके पास बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपके पास नॉर्मल सिंपल चेन है और पेप्टाइड बॉन्ड है, सिंपल चेन है और पेप्टाइड बॉन्ड है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, अब क्या है, अगर उस सिंपल चेन में एक से ज़्यादा चेन के बीच में, ठीक है, एक से ज़्यादा चेन के बीच में क्या बन जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, या एक ही चेन के बीच में अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। सी है, ये एक चेन है और इस चेन के अंदर ही बीचों बीच जैसे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और आपके दूसरे पर्टिकुलर अमीनो एसिड का हाइड्रोजन, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और वो हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपकी अलग अलग चेन के बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो बेटा इस केस में मतलब पेप्टाइड बॉन्ड तो था ही, लेकिन क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड्स आके अलग से और आ गए, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो आपको सिर्फ बॉन्ड याद रखना है बेटा, बॉन्ड से ही क्वेश्चन आता है, सिंपल है। टर्शरी स्ट्रक्चर में अब क्या होगा, तो सेकेंडरी से टर्शरी बना है, अब सेकेंडरी बनने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा फर्दर उसमें और बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है ना। फर्दर बॉन्डिंग का मतलब उसमें वो खुद की कॉइलिंग शो कर दे, खुद बहुत ज़्यादा कॉइल हो जाए और उसमें वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आ जाए, ठीक है, उसमें आयोनिक बॉन्ड भी आ जाए, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ जाए और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन जाए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाए, तो वो क्या बनाएगा आपका टर्शरी प्रोटीन। ओके, क्वार्टनरी में फर्दर बॉन्डिंग हो जाती है, आपकी एक से ज़्यादा चेन मिलती है, और जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर आपको 4 चेन मिलेंगी, ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा, आगे बात समझ में। तो ऐसे करके जब जो है उससे भी ज़्यादा उसमें क्या हो जाए, कॉइलिंग हो जाए, तो वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। बहुत आसान है इसको लर्न करना। तो प्राइमरी आपको सिर्फ बॉन्ड याद करने हैं। प्राइमरी बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड की एक लीनियर अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जनरली जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल एक मैसेज देता है जिसके अकॉर्डिंग बनते हैं। इस वाले स्टेटमेंट को आपको 12th क्लास में अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो पेप्टाइड तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 0.35 नैनोमीटर। पहला अमीनो एसिड हमेशा ध्यान रखना एन टर्मिनल होगा, लास्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल होगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है। पहला अमीनो एसिड हर चेन का मिथियोनिन होता है, क्यों होता है इसको मैं आपको 12th क्लास में बताऊंगी, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। पहला अमीनो एसिड बस यूँ याद रखो कि हर चेन में पहला अमीनो एसिड आपका मिथियोनिन ही होगा। ओके, नॉर्मल बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको देखो अल्फा हेलिक्स भी मिल सकता है और बीटा स्प्लिटेड शीट भी मिल सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेबलाइजेशन किससे होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी होगी। फिर आपको अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल याद करने हैं, केरेटिन है, मायोसिन है, एपिडर्मल प्रोटीन्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। पॉलिंग और कॉरे ने हेलिकल मॉडल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इज बीटा प्लेटेड शीट, आपको दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे भी देखो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, ठीक है ना। तो आपको याद देखो डिफरेंस क्या है, अगर हेलिकल स्ट्रक्चर है तो इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड लगा लो, या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड लगा लो, यानी विद इन चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। और बीटा प्लेटेड में इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, अलग अलग चेन के बीच में है।
When three polypeptide chain coiled around each other by hydrogen bond, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा है तो वहां पे आप कोलेजन हेलिक्स बोलोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कोलेजन जो होता है बेटा ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, अच्छे से याद कर लेना, पेपर में मिल जाता है कई बार ये क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मली डबल हेलिकल होते हैं, डबल हेलिक्स से ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट आपका जो कोलेजन प्रोटीन होता है दैट इज ट्रिपल हेलिकल, उसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। क्लियर। टर्शरी स्ट्रक्चर में देखो ये बनता क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है अपने जो नॉन पोलर अमीनो एसिड है उनको अंदर छुपाने की कोशिश करता है, ठीक है। और पोलर वाली चीज़ों को, पोलर अमीनो एसिड को, पोलर साइड चेन्स को ये एक्सपोज करने की कोशिश करता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये 3D स्ट्रक्चर बनाएगा और बेसिकली यहाँ जो बॉन्ड बनेंगे वो आपको दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन, आयोनिक और ये सारे। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो जब तक प्रोटीन आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में है दैट इज नॉट फंक्शनल, सेकेंडरी में है कुछ हद तक फंक्शनल हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा फंक्शनल कब रहेगा, जब वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, देखो जनरली जो आपके सेकेंडरी प्रोटीन है ना वो स्ट्रक्चर में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो एंजाइम का काम करते हैं, ठीक है। तो वो अपनी एंजाइमेटिक बिहेवियर कब शो करेंगे बेटा, जब वो अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होंगे। क्लियर। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पेसिफिक टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब एक प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके टर्शरी स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है, एंड दैट इज अफेक्टेड बाय पीएच, टेम्परेचर एंड केमिकल। बहुत ज़्यादा पीएच कर दिया, बहुत कम पीएच कर दिया तो उससे उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जैसे दूध फट जाता है ना, ठीक है ना, दही जो बनता है या दूध फटता है उसके इसमें वो डीनेचुरेशन हो जाती है उस प्रोटीन की और वो कोगुलेट कर जाता है, मतलब इकट्ठा सा हो जाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। क्वाटरनरी प्रोटीन जो है, अच्छा टर्शरी स्ट्रक्चर जो होते हैं जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर शो करते हैं, फाइब्रस नहीं होते। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बेटा आपको क्या दिखाई देगा, ओलिगोमेरिक प्रोटीन होते हैं। ओलिगोमेरिक का मतलब मोर देन 1 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। और बेसिकली यहाँ पे आपको ईच चेन हैज़ इट्स ओन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। आपके पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है और हर चेन का अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगा अलग सा, अपना सेकेंडरी भी होगा, टर्शरी भी होगा, लेकिन वो इंटरमिंगल्ड फॉर्म में रहेगी, उलझी हुई रहेगी किसी दूसरी प्रोटीन के साथ, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए आपने ह्यूमन HB या फिर मायोग्लोबिन दोनों याद रखने हैं। क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की, ठीक है। यहाँ से बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है बेटा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ग्लोबुलर प्रोटीन आपका शेप के बेस पे तो फाइबर की तरह होंगे, फाइब्रस प्रोटीन। आपने जस्ट एग्जांपल लर्न करने हैं, कोलेजन, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन, सिल्क फाइबर, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन की जहाँ तक बात है तो हिस्टोन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, जो टर्शरी स्ट्रक्चर शो कर रहे थे वो ग्लोबुलर प्रोटीन थे। नॉर्मली सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले आपके फाइब्रस हो जाते हैं। क्लियर। कंपोजिशन की बेस पे कुछ प्रोटीन सिंपल होते हैं जिनमें आपके सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके 4 टाइप आप देखोगे यहाँ पे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टीन, हिस्टोन प्रोटीन, ये सारे, ठीक है ना, स्क्लेरोप्रोटीन। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कॉन्जुगेटेड होते हैं। यहाँ ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं बेटा, आपका प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है। जनरली जो प्रोटीन होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेटेड फॉर्म में क्या मिलता है आपको, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट मिलता है, ठीक है। और उस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। क्लियर। आगे बात समझ में। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या क्या हो सकता है, देखो जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है तो यहाँ पे ग्लूकोज जो ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में है दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA प्रोस्थेटिक ग्रुप है। लिपोप्रोटीन के अंदर आपका लिपिड जो है दैट इज योर प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही फ्लेवोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन में मेटल आपके क्या रहेंगे, प्रोटीनेशियस पार्ट का, सॉरी प्रोस्थेटिक ग्रुप का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब भी हेलिकल की बात करें ध्यान रखना, हेलिकल प्रोटीन जो सेकेंडरी प्रोटीन हमने पढ़े थे उसके अंदर राइट हैंडेड फैशन में हेलिक्स मिलते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगी आपकी हेलिक्स की।
आयनिक नेचर के बेस पे प्रोटीन दो टाइप के हैं, एसिड प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन। मतलब जनरली देखो प्रोटीन के अंदर क्या है आपके अमीनो एसिड, अगर किसी अमीनो एसिड में एसिडिक अमीनो एसिड का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो जब आयोनाइजेशन होगी तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। मतलब उसमें से जब प्रोटॉन्स जो हैं निकलेंगे तो वो आयोनिक बिहेवियर, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा डोनेट करेगा और इसीलिए वो एसिडिक रोल प्ले कर रहा है, तो वो एसिडिक प्रोटीन कहलाएगा। सिमिलरली अगर बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा है, ठीक है, जैसे आपका लाइसिन है, आर्जिनिन है, ये बेसिक अमीनो एसिड होता है। अगर इनका कंटेंट ज़्यादा है किसी प्रोटीन में, जैसा कि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर होता है, वहाँ आर्जिनिन और लाइसिन अबंडेंट अमाउंट में मिलता है, जिसकी वजह से वो बेसिक प्रोटीन के अंदर आते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे कि कोलेजन है, केराटिन, एक्टिन, फाइब्रिन, जनरली सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। फंक्शनल प्रोटीन जनरली आपके एंजाइम्स होते हैं। कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कुछ प्रोटीन स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे कि आपका फेरेटिन है, केजिन प्रोटीन, जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है दैट इज योर केजिन प्रोटीन। ओके। ग्लूटेन प्रोटीन आपके व्हीट के अंदर जो आटा लेकर आते हो, आटा जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है वहाँ पे, ठीक है, पानी डालते ही जब वो कोगुलेट कर जाता है, ग्लूटेन प्रोटीन। कुछ डिफेंसिव प्रोटीन होते हैं जो बेसिकली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, ठीक है। कुछ अलग से भी प्रोटीन होते हैं, जैसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज मोलेलिन। याद करो मोलेलिन मैंने पहले कहाँ बताया है, इट इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड स्वीटेस्ट सब्सटेंस। क्लियर? तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रोटीन। ठीक है बेटा, रिवीजन में मुझे तो बहुत टाइम लग जाता है, बट डोंट वरी, जितना करवा रही हूँ वो आप यहाँ से कर लो, अदरवाइज आपके पास मैंने नोट्स तो भेज ही रखे हैं, आप वो रिवाइज कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू। ठीक है, जितना मुझसे हुआ मैंने रिवाइज करवा दिया। अब आपके टॉपिक्स क्या क्या बच गए हैं, देखो अब तक जो रिवाइज किया आई थिंक आपने साथ साथ कर लिया होगा। अब जो टॉपिक बचे, एक तो लिपिड बचा है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। एक आपके बचे हैं न्यूक्लिक एसिड, छोटे से टॉपिक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट है, छोटा, वो भी छोटा सा ही टॉपिक है। और अल्टीमेटली एंजाइम्स। तो 4 टॉपिक आपके बच गए। ठीक है, रिवीजन में देखो नो डाउट टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेल वाला तो फिर भी हमने बहुत जल्दी जल्दी किया था, लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स में बेटा जितना लिखवाया है उतना रिवाइज करवाया है। ठीक है ना, तो आप भी साथ साथ मेहनत करो और MCQ सॉल्व करो। आई थिंक बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। इतना स्लो सिलेबस आज तक कभी नहीं चला, ये सिर्फ कोरोना क्राइसिस की वजह से है, अदरवाइज अब तक 2-3 चैप्टर और हो चुके होते। ठीक है ना, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत लेंथी है। हालांकि CBSE ने कम कर दिया है, बट फिर भी स्टिल बहुत ज़्यादा जो है आपका सिलेबस है। और इस तरीके से आई थिंक जो हम आपको फेस टू फेस समझाते हैं वो अब पॉसिबल नहीं है, बच्चे बहुत ही लेट शेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप साथ साथ मेहनत कर रहे होगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू बेटा।